Hello students, in this video I will explain you the investment fluctuation reserve with the help of examples. This video is really going to be very interesting and fruitful for you. Please watch it till the end because these are the important topics for reconstitution of firm. And you all know that reconstitution of firm, there are 4 cases, and we are doing the first case, that is changing profit sharing ratio. We will still have to do 3 more cases, that is admission of partner, retirement of a partner, and death of a partner. And these are the important topics from CBSE examination point of view. 8 marks will be allotted to these questions, that is for admission of partner, retirement and death. 8 marks questions may be allotted, and for admission it is genuine that it will come in the 8 marks question, and each and every point, each and every marks that is allotted or the is allotted in the examination to a question is important for you to score the highest percentage of marks. So do watch the video. Now let's start with. I've already explained you that investment means asset. So this investment, it means assets. Why it is assets? Because the amount of money that we have put in some other's business is does gives us some return. मतलब जो पैसा हम किसी और के बिजनेस में या किसी और एसेट्स में अगर हम लगाए हैं तो वहाँ से हमें रिटर्न आ रहा है, ठीक है, दैट तो प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं और इसलिए ये इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट हो जाता है. नाउ रिजर्व्स, you all know what this means. It means a part of profit kept aside for unforeseen losses and expenses. Okay, so these two terms we are aware of. We are very much aware of these two terms, isn't it? But what does the term investment mean? What does this term, fluctuation mean? What does this mean? Fluctuation, it is not an unknown term to you. It means change. C-H-A-N-G-E. Okay, so it means change. Now why change? Now look here. Often you find that land, it is an asset. So a person, he bought, a land was purchased for rupees say 40,000 in the year 2009. In the year 2009 एक ज़मीन जो खरीदा गया था उसका वैल्यू था आपका 40,000, ठीक है. अब आफ्टर 10 years or say after some years, 4 or 5 or 6 whatever minute, say in 2020 at present, the same value of land costs rupees, or the value of the land is now rupees 15 lakhs. Same plot. In 2009, the plot was purchased, means investment was made
in the land and for 40,000. And now at present the same plot, the value is 15,000. Now this is the value called the book value, which is being recorded in the balance sheet at cost. Okay, and now in the present date, this is the market value. Okay, so you see there is a huge change. There is a huge change in the value of the investment made. Now here the change is positive. Why? Because the value of the land has increased, isn't it? But problems arises, or the firm loss or expenses arises if the value would have deteriorated or decreased. मतलब 40,000 में हम प्लॉट खरीदे, लेकिन अगर उसका वैल्यू हमारा 30,000 पर अटक जाता है, या 30,000 2012 में या 20 में उसका वैल्यू 30,000 हो गया है, तो 10,000 रुपया तो मेरा घट गया है, जिस वजह से मेरा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उसमें चेंजेस दिख रहा है, और ये जो चेंज जो है वो मुझे घाटा दे रहा है. अब ये जो घाटा हुआ, ये जो चेंज हुआ, ये लॉस को सहने के लिए, इस लॉस को संभालने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, और उसी रिजर्व का नाम है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसको IFR भी बहुत लोग कहते हैं या कह सकते हैं. ओके, नाउ दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, ये आपका accumulated, is your accumulated profit. Okay, और ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यूड किया जाता है, उसी वक्त आइदर चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के वजह से यह फंड जो में भी असर पड़ता है, और उसी का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, यही आज हमको देख लेना है न्यूमेरिकल्स के माध्यम से. तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो सबसे पहला केस है कि अगर, ठीक है ना, केस ए जिसको हम ले रहे हैं, इफ द बुक वैल्यू of investment is equal to the market value. ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल हम लोग यहीं पर ले लेते हैं. आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना. मान लीजिए कि IFR, ठीक है, IFR जो आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है, दैट इज ₹30,000. 30,000 का IFR आपका दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट्स
एट कॉस्ट। ये हमेशा याद रखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, वो बुक्स ऑफ द फर्म में रिकॉर्ड होता है, वो कॉस्ट में ही रिकॉर्ड है, एट कॉस्ट, मतलब जिस दाम में हम उसको खरीदे थे उसी दाम में वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो ये हमारा आ जा रहा है 1,50,000। ठीक, तो ये मेरा कहाँ दिखाया देगा, IFR कहाँ दिखेगा, ये लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट साइड में दिखाया जाएगा, और ये एसेट साइड में। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो मेरा केस है वो क्या कह रहा है कि ये जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is rupees 1,50,000। तो आपको क्या नजर आ रहा है अभी कि जितना मेरा वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का, मतलब बुक वैल्यू जितना था, मार्केट वैल्यू भी उतना ही है। मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, ताकि आपके सामने आ जाए कि बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। मतलब रुपीज बुक वैल्यू कितना है दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा बुक वैल्यू है तो 1,50,000 है ना, और मार्केट वैल्यू भी कितना बताया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा, वो भी मेरा 1,50,000 है। जब इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ तो एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो मेरा 30,000 रुपया हम साइड करके रखे हुए थे कि अगर कोई लॉस या घाटा होता है या एक्सपेंस होता है, सॉरी, तो उसमें हम इस अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये अमाउंट का तो इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो गया। तो इस अमाउंट को क्या करना है, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पूरी तरह से पार्टनर्स में बांट देना है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो आपका जर्नल एंट्री होगा तो वो हो जाएगा IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है ना। तो अब IFR में कितना अमाउंट जाएगा, 30,000, और यही 30,000 सभी पार्टनर्स के बीच में, जितने भी पार्टनर्स हो उनके बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IFR इन ओल्ड रेशियो। हमेशा से ध्यान रखिएगा, हम पहले भी आपको समझाए हैं पिछले वीडियो में कि अगर पुराना प्रॉफिट है तो वो सभी पार्टनर्स को पुराने रेशियो में ही बट के जाना है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये पहला जो केस था हमारा वो यही है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर सेम है। ठीक है। एंड नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड केस। दूसरा जो हमारा केस होगा, और दूसरा केस थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस केस पर। दिस केस सेज दैट इफ the market value
of investments is less than book value. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग वही छोटा सा जो एजम्पशन लिए थे कि मेरा बैलेंस शीट जो दिया हुआ है ना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जो दिया हुआ रहेगा उसमें IFR वो कितना लिए थे, 30,000 रुपया दिया हुआ रहेगा लायबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 1,50,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का वो कम है बुक वैल्यू से। मतलब यहाँ पर जो भी होगा, मतलब अब ये आपका देख लीजिए, मार्केट वैल्यू इज ₹1,30,000। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, हुआ कि नहीं? मतलब मार्केट वैल्यू इज लेस देन योर बुक वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, आपका क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू जो है वो कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है। मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उसका दाम घट गया है। अब यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज पास होगा वो डिपेंड करता है कि किस हद से या किस दर से ये फॉल हुआ है। ये जो डिफरेंस है ये MV माइनस BV मतलब मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू जो हुआ है, यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉस या फिर आप कह सकते हैं ये जो डिक्रीज होगा इसका क्वांटम ऑफ डिक्रीज कितना होना है, कि जितना डिक्रीज होगा उसी हिसाब से आपका जर्नल एंट्री पास होगा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाह रही हूँ, वो ये है कि देखिए कि आपने 50,000 लगाया था कहीं, 1,50,000, और अभी उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना आ गया है, 1,30,000। मतलब आपको लॉस हो गया बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। मतलब 1,50,000 आपका बुक वैल्यू था, उसमें से 1,30,000 मार्केट वैल्यू घटा दीजिए, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो घट गया है। तो कितना घट गया, 20,000। तो ये 20,000 जो है ये आपका लॉस हो गया। अब इस लॉस जितना हो रहा है उसी के हिसाब से आपका जर्नल होना है। तो आइए एक एक करके जर्नल देखते हैं। तो पहला जर्नल, ध्यान से देखिएगा, इफ द फॉल मतलब इसी को हम लोग फॉल कह रहे हैं। ठीक है ना, ये जो घटा है इसी को फॉल कह रहे हैं। इफ द फॉल इन द मार्केट if the fall in the not market actually book value is less than IFR। मतलब ये जो गिरावट हुआ ये अगर IFR जो हम क्रिएट करके रखे थे, मतलब
वो जो लॉस होगा उसको मीटअप करने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए जो हम रिजर्व क्रिएट किए हैं, अगर रिजर्व से कम लॉस हो गया तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला केस में फॉल कितना हुआ था या लॉस, ये 20,000 और IFR कितना क्रिएट किए हुए हैं 30,000। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए हमारे पास इतना है और लॉस कितना हुआ है 20,000। सो ₹10,000 इज स्टिल रिमेनिंग। अब ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट का पार्ट हुआ है ना, जो कि बचा हुआ है। अब इतना अमाउंट क्या होगा, किसको जाएगा, ये अमाउंट चला जाएगा पार्टनर्स को। ठीक है, और वही बात लागू होता है कि ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को तो जाएगा, लेकिन किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री इसके लिए हो जाएगा IFR अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो टोटल IFR हमारा कितना था 30,000। ठीक है, 2 घटा कितना, जितना घटा इन्वेस्टमेंट तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा, भरपाई करना है ना। तो 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा 20,000, क्योंकि इतना ही वैल्यू घट गया था। और बाकी जो बचता है वो है ये वाला अमाउंट, तो ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और 10,000 याद रखिएगा, ये जो 10,000 है ये किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। बार बार ध्यान रखिएगा, यही गलती होता है। तो गलतियां मत दोहराइएगा, बढ़िया से ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, नरेशन हो जाएगा फॉर एडजस्टमेंट of IFR due to change in PSR। इतना लिख दीजिएगा, आराम से हो जाना है। ठीक है, अब इसी दूसरा केस का केस 2 का फर्स्ट पार्ट किए हैं। अब केस 2 का सेकेंड पार्ट मतलब बी पार्ट जो होना है, बी पार्ट में क्या होगा समझ लीजिए। इफ द फॉल इन द वैल्यू of investments is equal to IFR। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर से देख रहे हैं, दोबारा नहीं लिख रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पर पिछला सवाल में जो हमने आपको दिखाया था देख लीजिए। IFR कितना है 30,000, इन्वेस्टमेंट कितना है 1,50,000। ठीक है ना, सो IFR हमने ले लिया था 30,000 और इन्वेस्टमेंट्स हमारा था 1,50,000। ठीक है, से मार्केट वैल्यू जो है वो हमारा अब है ₹1,20,000। तो देयरफॉर फॉल
इन वैल्यू जो है इक्वल्स टू 1,50,000 माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू ₹30,000। यहाँ केस ऐसा है कि जितना हमारा IFR क्रिएट किए थे उतना ही हमारा फॉल हुआ है। तो पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए कुछ नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा IFR अकाउंट को डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टोटल 30,000। नरेशन क्या लिखेंगे? फॉर एडजस्टमेंट ऑफ IFR। ठीक है, अब इसी का लास्ट केस, तीसरा केस सी, कि इफ द फॉल इज इन द वैल्यू of investments is more than IFR। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, मतलब IFR मेरा दिया IFR वो मेरा कितना हम लेके रखे हुए हैं, क्रिएट करके रखे हैं 30,000। मेरा इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 1,50,000। ठीक है, और से ड्यू टू चेंज इन PSR मेरा मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इज ₹1,00,000 1,00,000 हो गया। तो देयरफॉर फॉल इन वैल्यू, गिरावट कितना आया है? 1,50,000 बुक वैल्यू था, उसमें से 1,00,000 मार्केट वैल्यू माइनस कर देते हैं तो मेरा गिरावट 50,000 है। अब आते हैं, मेरा IFR कितना है? 30,000, राइट। लेकिन मतलब इतना हम अपने पास मौजूद रखे थे कि अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो इस अमाउंट का इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन जो फॉल हुआ वो 50,000 हो गया, जो कि IFR से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? देयरफॉर लॉस हुआ ना, इक्वल्स टू 50,000 माइनस 30,000। ये 30,000 कौन सा है? ये वाला 30,000। ठीक है, तो 20,000 का हमको और नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री क्या होने वाला है ये देख लीजिए। तो जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा 2। सबसे पहला IFR अकाउंट को डेबिट करेंगे
2. Just a minute. IFR account debit, revaluation account को debit to investment account. ठीक है, तो मेरा IFR अकाउंट में कितना जाएगा? ऑलरेडी हम 30,000 तय करके रखे थे, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया लॉस, तो इसीलिए 20,000 यहाँ पर आ जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट में मेरा घाटा कितना लगा, मतलब कितने से मेरा इन्वेस्टमेंट घट गया? 50,000 से। ठीक है, तो ये एंट्री किस लिए पास किए हैं? फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड एंट्री है वो क्या करना है? ये जो लॉस अमाउंट है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस है ट्रांसफ़र किए, ये पार्टनर्स कैपिटल को बियर करना है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वही ओल्ड रेशियो में ही बटा जाएगा। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो जो 20,000 का आपका लॉस हो रहा था, वही लॉस पार्टनर्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है इन ओल्ड रेशियो। फॉर लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओके, और अब आते हैं तीसरा केस, द थर्ड केस। ठीक है ना? थर्ड केस जो है वो ये कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का अगर बढ़ जाता है, मतलब ये हमारे लिए फायदे की बात है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब IFR कितना है? सबसे पहले देख ली, IFR हम क्रिएट करके रखे हैं, सपोज 30,000, और इन्वेस्टमेंट्स हमने क्रिएट किया है, इन्वेस्टमेंट हम बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करके रखे हैं ₹1,50,000। ठीक है, नाउ ड्यू टू चेंज इन PSR, the market value of investments इक्वल्स टू आपका हो गया है 2 लाख। बढ़िया बात है। पहले हमने इन्वेस्ट किया कहीं पर, हम खरीदा कोई सामान 1,50,000 से, और अब जो है मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकली हमको प्रॉफिट होना है कि नहीं? वो हमको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितना हम लगाए थे अब उसका वैल्यू
और ज़्यादा हो गया, जैसे हम लैंड वाला एग्जाम्पल आपको दिए थे, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा। जर्नल एंट्री पास करने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो इंक्रीज हुआ है, मतलब मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन योर बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हमारा 2 लाख है, माइनस बुक वैल्यू 1,50,000 अगर कर देंगे तो ₹50,000 क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। और यह प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 जर्नल एंट्री होगा। एक इसके लिए पहला, दूसरा जर्नल एंट्री इस अमाउंट के लिए, और तीसरा जो जर्नल एंट्री होगा तो ये क्या है, ये प्रॉफिट हो गया ना, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में दे रहे हैं उसके लिए। तो पहला जर्नल एंट्री क्या है देख लीजिए। IFR जो है मेरा 30,000 का क्रिएट किया हुआ, ये तो काम में नहीं आया, ये बच गया। तो बचा हुआ मतलब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स को बट जाना है। तो IFR अकाउंट को डेबिट 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 फॉर IFR transferred to partners capital account। और किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ये कभी भी मत भूलना कि पुराना प्रॉफिट मतलब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो पुराना रेशियो में ही बटना है। अब दूसरा जो है एंट्री वो क्या है कि हमको प्रॉफिट हो गया, हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़ गया। तो एसेट्स का जब रिवैल्यूएशन हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, एसेट का जो है वैल्यू चेंज हुआ, मतलब रिवैल्यूड हुआ, तो हमको मुनाफा कमाई हुआ। तो ये मुनाफा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना है एज इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया इन्वेस्टमेंट, सीधा सीधी बात, एसेट मेरा इन्वेस्टमेंट था ना, उसका वैल्यू बढ़ गया, एसेट्स का वैल्यू बढ़े तो डेबिट। तो कितना से बढ़ गया, 50,000, एंड दिस 50,000 इज माई प्रॉफिट। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। ठीक है, journal for the value of investment brought up। ठीक है, और जो लास्ट एंट्री होगा, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अगर हुआ है वो किसको जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा। तो अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांट देना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट 50,000 से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000। और हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
बच्चों, इस न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होना है। आपका ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड से थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन है नहीं। आप 2-3 बार इसका 2-3 ठो सवाल बना लीजिएगा। टीके गोयल में भी है,